just go full screen on that. Okay, so as I told you in the last class, I guess, the new one. Okay, no one else is here. Cool. Okay, so before you get started, I just wanted to give you a quick introduction about like what has been covered so far. So I believe as of now you should have just, I'll say, just the basic introduction. I'll say basic cognizance of what a table is, what a relational table is, what is row, what is but like column and all, and just some rudimentary, I'll say, basic syntax information must be there, like the select, from, where, and maybe group by. I'm not expecting you to, like as of now, to be able to solve any kind of problems on group by, but let's just say that if I'm going to give you a sample table, and if I'm going to ask you some, again, very basic problems on SQL, right? I'll say again, it should be doable given that you have attended the last two classes. So let's just do a quick recap on that. So assume you have a table called, uh, let's say the table is employee. Okay, and we just have three columns in that. Let's say the first one is employee ID. I'm just going to write ID. Okay, keep in mind this is employee ID. And let's say we have department, and let's say we have another one, salary, SA. Okay, so as of now, let's say we just have three columns, and the employee ID is going to be populated with all the information for every employee, and the corresponding department, and the like related salary. Now think about it. This table is supposed to have the information of all the employees, right? Now, any given employee should not be present in the table twice. Why? There is no need for an employee to have like duplicate, I'll say, information about department and salary. And let's say we have an assumption that a given employee is there in only one department, right? So if I'm saying, let's say Amit, okay, Amit is in, let's say, marketing. So Amit marketing information, I'm just going to write it. So let's say Amit is there and the department is marketing. Okay. Now Amit and marketing should not come again in this whole table. Let's say the corresponding salary is 50. Similarly, I have some guy and his department, again the salary. Some guy, again his department, her department, and the salary. Now think about it. This ID, in this case, I've just written name, but in typical cases, the ID could be anything. Okay, the ID could be just it could be just a string, maybe just made up some numbers, or maybe mix numbers and alphabets. It could be anything. Now I'll come to a point later on in this session where I'll be discussing, I'll say, primary keys and foreign keys. But for the timing, I'm just going to do a quick check, as in like what you have learned as of now. Okay, so for the timing, let's say ID has the name information, and no Amit is going to come again. Let's keep it very simple. So Amit and let's say some Soham and Sham, all kind of information is there. Okay, the department could be again anything, marketing, software engineering, or product management. It could be anything, analytics, anything. Let's say I just want the set of users or set of employees who are in marketing and their salary is more than 100. Now 100 is one condition, and another condition is marketing. So I'll just write it down. Get all employee ID, okay, where salary is at least 100. That means salary should be more than 100 or equal to 100, and they should be in which department? There, marketing. Okay, this is fairly easy statement. Okay, again, there is no group by, there is no fancy function involved here, just some select, and let's call this table as employee table. I want, again, all the employee IDs. Just employee ID is required. So the final output is going to have just one column, and it's going to be populated with all the employee IDs.
Okay, I'm just going to direct my question to any random person, and assuming that person has attended the last class, he is supposed to answer it. Okay. Neil, can we get a random name? Just pick any name. Yeah, I think let's go with Suman. Suman. Okay, Suman. Hello, yes, Yeah, sir. go ahead. So select department Okay, select department. from employee where. एक सेकंड मैंने क्या पूछा है? What is the output required? It's employee ID, right? Yes, sir. Okay, so select what? Select employee ID or select department? Select employee ID. Select employee ID. Very good. Okay, go ahead. From employee table From employee. where Cool. Where? salary greater than equal to 100. Where salary is equal to greater than equal Greater to than 100. equal to 100. Yes, sir. Just that we have two conditions. This is condition 1 and this is condition 2. And where department is equal to marketing. Okay, so now we are dealing with multiple conditions, right? So whenever you have multiple conditions, you are going to add another statement that is going to be the and clause. Okay. And Okay, so where salary तुम बोलोगे ना कि salary at least 100 होनी चाहिए और yes, sir. उसका department marketing होना चाहिए. Yes, So sir. that for that we have the keyword called and. Okay, so where And salary is at least 100 and department department is equal to marketing. marketing. अब बताओ यार, अब तुमने बस ये लिख दिया marketing, ये सही नहीं है क्योंकि whenever you are dealing with numbers, no, numbers को तुम वैसे उसको रख सकते हो, but for strings you have to put it in quotes. Okay, Okay, sir. so Yes. this has to be the otherwise तुम्हारा syntax पूरा का पूरा सही है, बस ये कोड्स की वजह से तुम्हारा एरर आएगा वो. ठीक है, तो Okay. सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, अब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए था एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, कहाँ से Yes. चाहिए था? ठीक है, From employee एम्प्लॉय table. टेबल से चाहिए था. ठीक है, डू वी हैव एनी कंडीशन like what sort of rows that we want to filter out? Okay, so we only want to filter out or take in those employees for whom the salary is at least 100 and they should be in marketing department. Marketing. Okay, let's just go with another guy. यार मेरे को नाम भी तो नहीं पता. Let's just go with राहुल. राहुल, you tell me यार कि मेरे को वो एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, उसकी करस्पॉन्डिंग सैलरी भी चाहिए, लेकिन नाउ अभी सैलरी इट शुड बी एटलीस्ट 500 एंड द पर्सन should be in, let's say, sales department. Can you just change this query to give me the answer? Now I want the salary to be at least 500. Okay, and the person should be from sales department. Give me the answer. Sales department. या सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए, उसकी सैलरी एटलीस्ट 500 चाहिए, और मुझे एम्प्लॉय आईडी एज वेल एज उसकी सैलरी इन्फॉर्मेशन चाहिए. लाइक करेंटली आई आस्क्ड यू जस्ट टू return me the employee ID, but now I'm asking you to return the employee ID as well as his salary. So how would I change this query to get the same result? Select department. Select department. Okay. Again, चलो ठीक है. Select Department. select department. Okay. डिपार्टमेंट में उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब फ्रॉम टेबल. From employee, हाँ. तो टेबल का नाम है. Where? वेयर सैलरी Salary? कितना था? 500 यार. 500 At तो सैलरी का इक्वल टू 500. greater than equal to 500. और क्या था? और बंदा सेल्स में होना चाहिए. वो पहले वाला बंदा मार्केटिंग वाला होना चाहिए था, लेकिन ये सारे बंदे मेरे को सेल्स वाले चाहिए. What should be the next line? And department equal to sales. Exactly. Very good. And department is equal to sales. Now, is this what I wanted you to extract, like from this table? I wanted to extract both employee ID as well as department. तो जो भी मेरे को चाहिए ना यार, उस सारे के सारे कॉलम मैं सेलेक्ट में मेंशन करूंगा. ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट तो मेंशन किया, लेकिन मैंने एम्प्लॉय आईडी मेंशन नहीं करी, तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी मेंशन करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी मेरे को पता चलेगा कि भाई डिपार्टमेंट में मेरे को मिल रहा है, मेरे को एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, शुड बी फाइन. नाउ आई बिलीव यू नो how to do a simple extraction from a table
with certain conditions. Okay, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताया यार कि now condition can be a single condition or it could be a multiple condition, right? So when I'm talking about multiple condition, it could be something like कि मेरे को and में चाहिए, और में चाहिए, या फिर सिंगल कंडीशन मेरे को नॉट चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सारे एम्प्लॉय आईडी बताओ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेरी, और सब लोग ध्यान से सुनो, सारे एम्प्लॉय आईडी बताओ, ठीक है, जिनकी सैलरी एटलीस्ट 100 है, लेकिन वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नहीं है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट छोड़ के सारे डिपार्टमेंट के होने चाहिए, बट वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो मैं जनरली व्हाट वुड बी माय लाइक सूडो लॉजिक, लाइक सूडो कोड आई से. द लॉजिक इज बेसिकली सेइंग, अभी कौन आ रहा है यार, संजय सिफी, आई डोंट नो हु दिस इज बट आई जस्ट एडमिट हिम. Okay, coming again. I want all the employee IDs. Again, their salary should be at least 100, but they should not be in the marketing department. तो यहाँ पे था कि डिपार्टमेंट हैज टू बी मार्केटिंग, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट शुड नॉट बी मार्केटिंग. तो जो नॉट का है ना यार, नॉट के लिए बस मेरे को क्या And करना है, इक्वल टू की जगह मैं क्या कर दूंगा, नॉट इक्वल टू. not equal to. ठीक है, तो ये तुम्हारा है इक्वल टू. जो तुम इंग्लिश में बोल रहे हो बस उसी को बस कोड के फॉर्म में लिखना है. ये क्या है तुम्हारा, नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे चुप्पे से एक, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, सॉरी. सो एक यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूंगा मैं. नाउ डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू मार्केटिंग, दैट एनी डिपार्टमेंट दैट इज नॉट मार्केटिंग, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड गिवन दैट हिज सैलरी इज एटलीस्ट 100. सो वी लर्न एंड वी लर्न नॉट. अब मेरे को चाहिए लिस्ट से मल्टीपल स्टेटमेंट की बात हो रही है, अब और की बात करते हैं. ठीक है, तो पहले हमने देखा एंड, ठीक है, नॉट का साइन भी ये चलेगा, नॉट. और लेट्स से जस्ट डिस्कस अबाउट और. अब सेम सुमन, यू ओनली एंड एवरीबॉडी प्लीज लिसन. ठीक है, you have to change the second query. Again, I just want employee ID and the department. Okay, salary, let's just keep it 500 only. So the salary has to be at least 500, or maybe I'll just change it. The salary has to be less than 1000. Okay, so now I want the same information, again same information, salary less than 1000, where डिपार्टमेंट अब मेरे को या तो सेल्स का हो या तो मार्केटिंग का हो. नाउ कीप इन माइंड, अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ इन सेल्स एज वेल एज मार्केटिंग. कोई बंदे के पास एक ही डिपार्टमेंट होगा, या तो सेल्स का होगा या तो मार्केटिंग होगा, या सीएस का होगा, मतलब सॉफ्टवेयर का होगा, या तो फिर प्रोडक्ट का होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बंदा दो डिपार्टमेंट में नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मेरे को सारे बंदे बताओ, उनका डिपार्टमेंट बताओ जिनकी सैलरी 100,000 से कम है, और या तो वो सेल्स में या तो मार्केटिंग में. So for example, there is guy Amit, he is in marketing, and this guy, let's say Sham, who's in sales. ठीक है, और इसकी है सैलरी 30. तो ये दोनों ही बंदे मेरे आउटपुट टेबल में आने चाहिए. क्यों भाई, कि दोनों ही बंदे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. इन दोनों की सैलरी 1000 से कम है, और Yes, दोनों ही या तो फिर सेल्स में या फिर मार्केटिंग में. ठीक है, सुमन, यू ओनली yes, sir. change this query quick. So, from where sales is less than 1000? ठीक है, तो मेरे को बस ये वाली लाइन चेंज करनी है. ठीक Yes, है, sir. दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेयर एंड Sales एवरीथिंग less एल्स इज than- गोइंग टू बी सेम बाय द वे, राइट. Yes, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी सेम होगा, फ्रॉम टेबल तो सेम ही है मेरा, वेयर सैलरी लेस देन 1000 1000 and एंड department equal to डिपार्टमेंट इक्वल टू sales or marketing. सेल्स और मार्केटिंग. अब देखो, तुमने बोल तो दिया सेल्स और मार्केटिंग, लेकिन सिस्टम को भी समझ में आना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर Sales सिंटेक्स. and marketing. नहीं, सुनो, वेयर सैलरी 1000 इज करेक्ट. अब तुमने क्या सोचा, अब सपोज कर समवन इज नोविस, राइट. सो Yes. हाउ डू यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ लाइक टू राइट इट डाउन. मैं पहले एक ऐसे बंदे की तरह लिखता हूँ जिसको कुछ नहीं पता है, बस उसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, और तो कहीं ना कहीं तो लगेगा. वेयर सैलरी इज लेस देन 1000 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू Marketing. मार्केटिंग. ठीक है, अब सीन क्या है ना कि ये तुम्हारे डेटाबेस को ये क्वेरी थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी.
उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे और को रिजॉल्व करना है, कैसे एंड को रिजॉल्व करना है. नाउ व्हाट आर दोस टू कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. दो टू कंडीशंस आर कि या सैलरी 1000 से कम and the department has to be either in sales or marketing. So I'll just write department, या तो sales हो या तो फिर marketing. ठीक है. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट के लिए तुम्हारी ये जो चीज है, this has to be in bracket, otherwise you are going to see an error. क्यों? कि अब ये मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है, this is going to be either true or false. यार अगर और and नहीं पता है तुम लोगों को, तो आई बी सेंडिंग आउट एन रिसोर्स फॉर द सेम. कितने लोगों को यार और एंड ये ऑपरेटर नहीं पता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और एंड कैसे यूज करते हैं, और एंड नॉट. एनीवन जिसको नहीं पता, जस्ट टेल मी, टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी कि नहीं पता है मेरे को. हाँ नहीं पता. ठीक है, एक बंदा. और ठीक है, चल ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें पता भी है तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू आर गोइंग टू like get confused while solving problems in SQL. So I'll be sending out some resources just for this. Okay. Again, ये बहुत ही basic चीज है. I'm not going to spend too much time on that. I'll be sending out a resource on this कि भाई और and not ये क्या होता है. ठीक है, इसका basic syntax क्या है SQL में. ठीक है, वो मैं भेज दूंगा and that is going to be very easy for you. Okay, so coming back to the problem, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी आ गई, किस टेबल से आ रहा है वो आ गया, सैलरी तुम्हारी कितनी है वो आ गई. और सेकंड जो स्टेटमेंट जो हमारा इट मस्ट बी फॉलोड कि यार डिपार्टमेंट या तो सेल्स में होना चाहिए और डिपार्टमेंट या तो फिर मार्केटिंग होना चाहिए. एंड देयर इज अदर एन ऑल्टरनेटिव वे एज वेल वेयर यू कैन जस्ट राइट वेयर सैलरी, ध्यान से देखो, लेस देन 1000 एंड डिपार्टमेंट इन. डिपार्टमेंट इन, तो मैंने अब इसको बता दिया कि भाई हम इसको देखो, एक मैं लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट में से किसी भी डिपार्टमेंट में बंदा है तो वो बंदा मेरे को तू भेज दे इसमें आउटपुट में. मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ. और वो मैं सिस्टम को क्या बताया कि भाई ये तू लिस्ट देख, इस लिस्ट में जो भी डिपार्टमेंट में लाइक करेगा वो भेज. और इसमें लिस्ट में मैं डाल दूंगा सेल्स, दूसरा डाल दूंगा मार्केटिंग. ठीक है, इफ यू रियलाइज दिस seems more intuitive and I'll say more concise. Okay, again Suman, you only, let's say I want again same query. Now in addition of sales and marketing, I want to add another category, let's say product. Okay, अब मेरे को सेल्स का बंदा दो भाई, मेरे को मार्केटिंग का बंदा दो, मेरे को एज वेल एज प्रोडक्ट का भी बंदा चलेगा. ठीक है, तो मैं इस क्वेरी में क्या चेंज करूं कि मेरे को आउटपुट मिल जाए. एंड डिपार्टमेंट इन सेल्स कोमा मार्केटिंग कोमा प्रोडक्ट. अरे भाई बहुत सही, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं तो. ये तो लगा कुछ तो एंड लगा कुछ तो बोलेगा और फोड़ा तूने. ठीक है, तो यहाँ पे Yes. बस डाल दे सिंपल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. ठीक है, हो गया तुम्हारा काम. मेरा क्वेरी अभी सही है. अब जो भी मेरे को आइटम चाहिए मैं यहाँ पे बस इन में डाल दूंगा और सिस्टम समझ जाएगा. ठीक है, अदरवाइज तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम लगाओगे ना डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. थोड़ा सा वर्बोज हो जाता है. ठीक है, ऑल्दो दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, बट दिस वन सीम्स अ लॉट बेटर. ओके, यस सर. ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया कि यार एक्सट्रैक्ट कैसे कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन, कैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, और मल्टीपल कंडीशन को हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, दैट शुड बी फाइन. Okay, let's move to group by function. And again, the agenda for this class is to get you familiar with, again, just to do a revision on the previous concepts, as well as get you familiarized with the group by concept. And then I'll be like sharing some video links where that is going to help you install a particular software जिस पे सारे के सारे तुम्हारे आगे आने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होने वाले हैं. ठीक है, वो मैं इस पे भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी फाइल 400-500 MB की है, तुम्हारा सिस्टम पे डाउनलोड होने में पूरा क्लास निकल जाएगा. मुझे तुम्हारी इंटरनेट स्पीड पता है. ठीक है, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट. तुम अपने टाइम में उसको डाउनलोड करो. आई विल बी सेंडिंग आउट द वीडियो कि भाई उसको कैसे इंस्टॉल करना है एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव टू टेक. एक बार वो हो जाए, जस्ट लेट अस नो, देन मैं उसमें तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक नेक्स्ट क्लास करके मे बी आधे घंटे का प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम तुम्हें कैसे सेटअप करना है, प्रॉब्लम सेटअप अपना वो करके कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को कैसे चेक करना है, आउटपुट को कैसे इंटरप्रेट करना है, कोई एरर है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो इन दिस वन जस्ट फोकस ऑन the syntax that I'm teaching
and the group by thing, and that is very important before you start solving any problem in SQL. Okay, so okay, let's move on to the next topic, that is going to be a group by clause. And again इसको बहुत ही ध्यान से सुनने का भाई, ग्रुप बाय से इंटरव्यू में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि लोग जो बोलते हैं कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, वो भी मचा देते हैं इसमें, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यार ये तो बहुत ही गंदी मेरी ड्राइंग है, सॉरी फॉर दैट। Okay, let's take a similar table as well. So I'll just go with employee ID, and I'll go with department and salary. Okay, let's say this is E1, E2, E3, E4, E5, E6. Okay, ये बंदे का डिपार्टमेंट I'll just write it as marketing, ये बंदा भी मान लो यार सेल्स में, ये बंदा मान ले मार्केटिंग में। I'm just going to write MS and anything else, right? I'll just do a mapping for that. I'm just going to write M for marketing, S for sales, again S for sales, M for marketing, S for sales, P for product. Okay, should be clear. Mapping कर देता हूँ यहाँ पे मैं MSP. So M is marketing, S is sales, और मान के चलो भाई कंपनी में बस 3 ही अभी डिपार्टमेंट चले, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अपना चलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये सैलरी इसकी मान लेते हैं यार 10, 20, 5, 50, 100, प्रोडक्ट चल इसको मान ले 20, ठीक है। ग्रुप बाय फ्रॉम द वेरी गेट गो इट शुड गिव यू एन इंट्यूशन कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो ग्रुप होता होगा, ठीक है। अब ग्रुप बाय के दो चीजें, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप बाय में, which column to group by. Again, as the name suggests, मेरे को ग्रुप बाय करना है तो किस कॉलम को यूज करना है ग्रुप करने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शंस I will be using. Okay, so two things. First of all, I need to know which column I'm going to use for the group by operation and what are the aggregation that I'm going to use. अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार मेरे को, अगेन तुम्हें कोई सिंटेक्स नहीं बताना है, ठीक है, बस सोचो कि तुम्हें एक ये पेपर पकड़ा दूं मैं, सपोज कर तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा है और तुम्हें मैं बताऊं कि भाई ठीक है तुम्हारे बिजनेस में ये एम्प्लॉई है, ये इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसकी सैलरी इतनी है, ये एम्प्लॉई है इस डिपार्टमेंट में, इसकी सैलरी इतनी है, मैं तुम्हें 6 बंदों की मैंने तुम्हें लिस्ट पकड़ा दी। अब मैं तुमसे बस सिंपली ये पूछूं कि यार तुम्हारी कंपनी में सेल्स में कितने लोग हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि सेल्स में कितने लोग का मतलब क्या पूछ रहे हो, क्या एक ये बंदा सेल्स में, एक ये बंदा सेल्स में और एक ये बंदा सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, काइंड ऑफ इज लाइक अ ग्रुप, ठीक है, सेल्स मेरा एक ग्रुप हुआ। अब मैं पूछूं मार्केटिंग में कितने बंदे, तुम गिनना शुरू करोगे, मार्केटिंग में 1, 2, तो एक तुम्हारे एक ग्रुप हुआ तुम्हारा मार्केटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने बंदे हैं भाई, प्रोडक्ट में मेरे पास एक बंदा है। अब मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, ठीक है, दीज आर योर ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये किस कॉलम को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू डिपार्टमेंट कॉलम, दैट मीन्स यू हैव टू ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने तुमसे यही पूछा ना कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है, मार्केटिंग में कितने लोग हैं, सेल्स में कितने लोग हैं, प्रोडक्ट में कितने लोग हैं, दैट मीन्स कि दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी लाइंग इन दिस डिपार्टमेंट कॉलम एंड दैट हैज टू गो इन द ग्रुप बाय क्लॉज, वेरी सिंपल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने तुमसे क्या पूछा कि भाई हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ व्हाट, किसकी काउंट करनी है तुम्हें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स से मेरे को पता है कि 3 रो है दैट बिलोंग्स टू सेल्स,
this row, and this row. These three guys belong to sales. I can just do a count of employee ID. Okay, I can just do a count of employee ID for each group. So for sales, I'm going to get how many guys here? E2, E3 एंड E5. अब इसको मैं काउंट कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 3 आएगा. क्या मैं बस एम्प्लॉय आईडी को काउंट करके मैं सारे काउंट निकाल सकता हूँ? क्या किसी और को भी काउंट किसी और कॉलम को भी काउंट करके आई कैन गेट द सेम रिजल्ट? फॉर एग्जांपल सेल्स में देखो तो मेरे पास जो 3 बंदे, इन तीनों की सैलरी कितनी है? 20. कितनी है भाई? 5. इस भाई साहब की कितनी है? 100. So if I'm grouping by department, for sales, if I'm just going to do a count of salary, that also is going to give me 3. समझ में आ रहा है? अगर मैं सैलरी का भी काउंट करूँ तो 2500 में काउंट करूँ तो 3 नंबर है मेरे पास. मैं एम्प्लॉय आईडी का भी काउंट करूँ तो मेरे पास 3 नंबर है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं सेल्स में जो 3 एंटिटीज है उनकी वैल्यू क्या है? SSS. ये सिस्टम में तो SSS लिखा होगा ना वहां पे, तो मैं उसका भी काउंट करूं तो मेरे को 3 ही मिलेगा. ठीक है, तो अब ये तुम्हारी चॉइस है कि भाई तुम एम्प्लॉय आईडी को काउंट करते हो कि सैलरी को काउंट करते हो कि खुद डिपार्टमेंट को काउंट करते हो. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू द सिंटेक्स. ठीक है, सिमिलर थिंग गोज फॉर मार्केटिंग. तो मार्केटिंग के लिए मैं क्या करूंगा भाई? मेरे को बस अगर सपोज करो कि फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई जस्ट वांट एम्प्लॉय आईडी, तो मार्केटिंग में एक E1 वाला बंदा है और एक E4 वाला बंदा है. दिस इज मार्केटिंग एंड दिस इज मार्केटिंग. अगेन कीप इन माइंड आई हैव डन द कलर कोडिंग. इट शुड बी इजी टू फाइंड आउट कि भाई सेल्स वाला बंदा कौन है और मार्केटिंग वाला बंदा कौन है. तो मार्केटिंग में 2 बंदे तुम्हारे पास, E1 और ये E4. देयर इज नो थर्ड गाइस. आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस ऑफ. ठीक है, E1 एंड E4. एंड प्रोडक्ट में भाई साहब बस एक बंदा है. ठीक है, अपना E6. तो अगर मैं मार्केटिंग काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरा काउंट कितना आएगा यार? यहाँ पे काउंट कितना आएगा? यहाँ पे काउंट है तुम्हारा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. ओके, तो अगेन नो सिंटैक्स. व्हाट इज द आउटपुट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग? This is my input table. This one is employee ID, department and salary is my input table. What is the output table here? Output table बहुत ही सिंपल है यार. क्या है मेरे का क्वेश्चन? क्या बता? हर डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं? इसका मतलब मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए और दूसरा चाहिए मेरे को काउंट. And count is basically count of employees. So you can write count, employee count. Or maybe I'll just write it down. EMP count. So that is just going to reflect how many employees are there in each department. Okay. सुमन, यू ओनली. सॉरी यार, मेरे को बस तेरा नाम याद है. ठीक है, अब बता इस डिपार्टमेंट कॉलम में कितने डिपार्टमेंट है? 3. 3 है. तो कितने रोज एक्सपेक्ट करता हूं मैं आउटपुट टेबल में? 3. 3 एग्जैक्टली. तो एक मैं रो एक्सपेक्ट करता हूँ सेल्स के करस्पॉन्डिंग, दूसरा मार्केटिंग करस्पॉन्डिंग और तीसरा मेरा यार प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग. तो एस, ये क्या है? कुछ और सेलेक्ट हो गया. ये SMP. ठीक है, सेल्स में कितने बंदे हैं? 3. 3. मार्केटिंग में 2. 2 और प्रोडक्ट में 1. 1. अब मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूं. ठीक है, एंड यू विल फाइंड इट कि जो मैंने बोला है बस उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है. ठीक है, ओके. ठीक है. सिंटेक्स इज नथिंग. सेलेक्ट. क्या चाहिए भाई मेरे को? डिपार्टमेंट चाहिए. ठीक है, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? ठीक है भाई, मेरे को लोग चाहिए तो काउंट. अभी मैंने तुमको बोला कि काउंट करने के लिए तुम तीनों में से कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो. राइट, यू कैन काउंट एम्प्लॉय आईडी इज गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट. कैन काउंट डिपार्टमेंट itself is going to give the same result, and count salary again is going to give you the same result. For the sake of simplicity, I'm just going to write employee ID. Count employee ID. ठीक है. Can you go next, Suman? From, let's the table name is employee only. From sales. employee से टेबल का नाम employee है ना? तो Yes, sir. from employee लिखेगा ना तू? Yes, sir. From employee. फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? अब तुम्हें पहली क्लास में बताया गया होगा कि सिंटेक्स का ऑर्डर क्या होता है. तो सेलेक्ट लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया. अब Where? यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि वेयर आएगा, लेकिन वेयर का कोई मैंने फिल्टर तो मैंने बताया नहीं ना तुम्हें.
मैंने कहा तुम्हें बोला कि बस मेरे को सेल्स वाले बंदे का अकाउंट चाहिए, या फिर मेरे को बस मार्केटिंग वाला चाहिए, या फिर मैंने तुम्हें कुछ ये भी नहीं बोला कि सैलरी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए. देयर वाज नो कंडीशनल स्टेटमेंट पुट इन द क्वेश्चन, राइट? इसका Yes. मतलब यू कैन जस्ट स्किप द वेयर, देयर इज नो फिल्टरिंग टू बी डन. That means you are just going to consider the whole table. Whenever there is a missing where clause, that means you are going to deal with the full table. And whenever you have to do some sort of filtering, you will need the where clause. But in the question, I have not mentioned any conditions. That means you are going to deal with the full table. Is that clear? Yes, sir. And again, किसी को भी दिक्कत, anyone should be very fine. Okay, so from employee, अब मैंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरे को डिपार्टमेंट दे देना भाई, और मेरे को काउंट दे देना. कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, अब नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो डिपार्टमेंट है ये एज अ ग्रुप एक्ट करे. ठीक है, इस ग्रुप में थिंक अबाउट एज अ ग्रुप, एज अ बैग. उस बैग में मेरे पास 3 बंदे हैं. ठीक है, तो सेल्स के करस्पॉन्डिंग, मार्केटिंग करस्पॉन्डिंग और प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो मेरे का नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा मेरा ये ग्रुप बाय. Group by. ग्रुप बाय क्या लिखूंगा? सुमन तू बता, किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग होने वाली है? Department. डिपार्टमेंट. वेरी गुड, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. नाउ सब लोग देखो, यही है तुम्हारा जो मैंने बोला, उसका सिंटैक्स यही है. डिपार्टमेंट चाहिए मुझे, काउंट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए. अब नाउ दिस काउंट ऑफ एम्प्लॉय तुम इसको नाम दे सकते हो. लेट्स कॉल इट, आई जस्ट राइट इट एज एम्प्लॉय काउंट. So let me just rub this off, this one as well. Okay, as EMP count. ठीक है, किस टेबल से चाहिए भाई? एम्प्लॉय से. और ग्रुप किससे करना है मेरे को? डिपार्टमेंट से. ठीक है, while we are at group by, okay, let's just say instead of finding the count, instead of just finding the count, I also want you to find the maximum salary in each department. Okay, now since we are venturing into functional space, right, so we are doing some count. अपन minimum भी पूछ सकते हैं, maximum पूछ सकते हैं. So I'll just give you a list of typical function that you're going to use in the group by. ठीक है, तो जब भी तुम ग्रुप करोगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक एग्रीगेट फंक्शन. जो भी तुम्हारा ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रुप में 3 बंदे, उन 3 बंदों के 3 सैलरीज भी है मेरे पास. ठीक है, मार्केटिंग में मेरे पास 2 बंदे, उन दोनों बंदों की दोनों सैलरी भी है. ठीक है, तो ईच ग्रुप इज गोइंग टू हैव इच like its own set of rules, right? So I'll just write a typical sales. ये ग्रुप है. ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स मेरे पास एक्सेसिबल है, जो डेटाबेस के अंदर एक्सेसिबल है. ये तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा. ठीक है, तो देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड सेल्स. उसमें मेरे पास E2 है, E3 है, E5 है. और इनकी सैलरी भाई कितनी है यार? 25 and 100. 25 and 100. Similarly, there will be a group called marketing, और उसका नाम कुछ और होगा, मतलब उसमें ये होंगे और इसका नाम होगा मार्केटिंग. ठीक है, ये टेबल तुम्हारे पास, ये बस सिस्टम को है, सिस्टम के पास एक्सेस है इस टेबल का. थिंक अबाउट इट कि एक सेल्स नाम का टेबल है छोटा सा, एक छोटा सा मार्केटिंग नाम का टेबल, काइंड ऑफ. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो टू समवन एल्स. निखिल. निखिल तू शायद से बता देगा. ओके, let me ask someone. Yes, sir. Yeah, Nikhil, hopefully you'll have the answer. But again, let's just say instead of just finding the count, I want to find the maximum salary and the average salary. And before you answer, let me give you the list of functions that might be used going forward in the like problem statement. So there is this function called count, जो हमने अभी देखा. Count क्या करेगा? बेसिकली काउंट करेगा यार. एक तुम्हारे पास मीन है, मिनिमम निकालेगा ये. एक है मैक्सिमम निकालेगा ये. एक है तुम्हारा सम निकालेगा. बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, सब बहुत ही फालतू का ये सब फंक्शन है. कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, काउंट, मेन, मैक्स, सम, एवरेज. ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी है तुम्हारा, मीन, मीडियन निकालने के लिए. ठीक है, बट अगेन वो सब अभी जरूरी नहीं. ध्यान रखो बस काउंट, मेन, मैक्स, सम एंड एवरेज. ठीक है, काउंट से क्या होगा, मीन से क्या होगा, मैक्स, सम, एवरेज. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट द काउंट, आई ऑल्सो वांट टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी एज वेल एज द एवरेज सैलरी.
तो निखिल मेरे को बस यही क्वेरी चेंज करनी है, ठीक है? Can you tell me what else do I need to add to get to the information that I need? So I want for each department, I want count of employees for each department, count of employee for each department, the मैक्सिमम सैलरी मुझे पता चलना चाहिए ना कि डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट किसको मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है। तो मैक्स सैलरी, ये भी हेल्प करेगा मेरे को पता चल जाए कि यार सबसे सस्ते में कौन निपट रहा है। तो मिन सैलरी नेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, मिनिमम सैलरी, और मे बी व्हाट इज द एवरेज सैलरी, ठीक है? तुम्हें पता चले कि तुम एवरेज सैलरी से तुम कहाँ पे बिलोंग करते हो, ठीक है? तो मेरे को 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? 4 तो इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर ईच डिपार्टमेंट। दैट मीन्स हाउ मेनी कॉलम्स वी आर डीलिंग विथ हियर? मेरे को 4 तो ग्रुप इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट वी नीड, सो हाउ मेनी इन टोटल कॉलम्स वी कैन एक्सपेक्ट? मतलब कॉलम, एक ही कॉलम से वो फिल्टर होगा। नहीं, 5 आउटपुट कॉलम में तो 5 आएंगे ना यार। हाँ, तो आउटपुट में हाँ, पहुंचा क्या, सिर्फ आउटपुट में कॉमा 5 डाल आएंगे के। एग्जैक्टली। तो मेरे को क्या आएगा? डिपार्टमेंट चाहिए मेरे को काउंट चाहिए, काउंट एम्प्लॉय, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट काउंट एम्प्लॉय, मैक्स सेल, मिन सेल एंड एवरेज सेल। यार ये थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। वेयर इज द मूव क्लॉज? ठीक है, तो ये मेरे पास 5 कॉलम मेरे को चाहिए, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है? नाउ हाउ मेनी कॉलम्स डू वी नीड फ्रॉम द इनपुट टेबल? तो कॉलम तो इनपुट टेबल का एक ही रहेगा, वो एक ही डिपार्टमेंट। एक तो डिपार्टमेंट है जिससे हम ग्रुप करने वाले हैं, और हमारा सैलरी से काम चल जाने वाला है, ठीक है? ठीक है, तो बताओ यार, कंप्लीट तो करो वो जो उसको। ऊपर वाला क्वेरी है उसमें कॉमा डाल के सिर्फ उसमें ऐड करने का मैक्स इन ब्रैकेट सैलरी, मीन इन ब्रैकेट सैलरी एंड कॉमा एवरेज इन ब्रैकेट सैलरी। गुड यार, तो मैक्स सैलरी मैंने डाल दिया, ब्रैकेट बंद, मिन सैलरी ब्रैकेट बंद, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, एवरेज। किसी को हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बताना यार, I'm just having some trouble. ठीक है, average salary bracket 1, and again I can just give some alias is basically I'm giving a specific name to that particular column. So max salary की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे max sal, main salary की जगह main sal, and again whenever you are naming a column there has to be an underscore. You cannot keep a column name as min space sal, नहीं रीड नहीं होगा वो, अंडरस्कोर वहां पे डालो, ठीक है? अंडरस्कोर ये तुम्हारा कन्वेंशन है, तुम डाल तो कुछ भी सकते हो वहां पे, मीन एक्स सेल, मीन पी सेल, डजंट मीन एनीथिंग ऑल्दो, राइट? सो मीन अंडरस्कोर सेल। I hope everything is clear because next I'm going to ask a series of questions to each and every one of you. कुछ भी डाउट है तो बताओ, अगर आंसर नहीं आया तो that's going to be a problem. Anyone? किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, cool. Next question. Shubham, are you there? Just say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Shubham, next question is for you. Again, I want the maximum salary and the average salary for marketing department only. Think about it. I'll just write it down. Yes, sir. Find max salary and average salary of marketing department. Yes. ठीक है, तो मेरा आउटपुट जो टेबल है, what I'm expecting here, again for this one only, I'm expecting department, Marketing. max sal and Marketing. average sal, and the entry is going to be marketing, just one row, keep in mind, just one row marketing, and let's say क्या था, मार्केटिंग का मैक्सिमम कितना है भाई? मार्केटिंग में 2 बंदे हैं,
एक का सैलरी 50, एक का 10 है, ठीक है। तो मैक्स जी। सैलरी हुआ तुम्हारा 50 और एवरेज सैलरी कितना हुआ? 50 और 10 का एवरेज कितना होगा भाई? 50 10 60 60 by 2 is your 30. This is what I'm expecting the database to return. ठीक है, you have everything on this screen. ठीक है, थोड़ा सा एक चीज तेरे को सोचना है, वो सोच के मेरे को बता कि ये आंसर तक कैसे पहुंचूंगा मैं। सर सेलेक्ट डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर देंगे, अकाउंट में जैसे मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी ले लें। नहीं नहीं, मुझे तो बस 3 कॉलम चाहिए ना, तो तू काउंट क्यों कर रहा है? यस सर। मुझे तो बस डिपार्टमेंट, मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी चाहिए ना। व्हाई यू आर आस्किंग फॉर काउंट? दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, काउंट तो चाहिए नहीं मेरे को। यस सर। ठीक है, सोचो यहाँ पे कंडीशन भी है, कीप इन माइंड देयर इज some sort of filtering that needs to be done. Okay, I just want the information for the marketing department, not for every department. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप भी करना है तुमको, यस ग्रुप के साथ एग्रीगेशन फंक्शन भी मेरे को चाहिए, 2 एग्रीगेशन फंक्शन चाहिए, एक एवरेज वाला चाहिए, एक मैक्सिमम वाला चाहिए। हाउ कैन यू गेट टू दिस रिजल्ट? अगेन, कितने लोग को आंसर पता है? जस्ट रेज योर हैंड्स, एक फीचर है वहां पे, सो दैट आई नो कि यार कितने लोग को पता है। कुछ बोलो मत, बस वेट just raise your सबमिट। hand. शुभम, आई विल कम बैक टू यू। आई जस्ट नीड Yes, टू डू अ क्विक चेक कि यार कितने लोग को समझ में आ रहा है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी आधी जनता है जिसने हाथ खड़े नहीं किए, दैट मींस दे डोंट नो द आंसर। Maybe the problem is very difficult, or maybe I'm not like doing this like in a good way, right? ठीक है, पहले मैं शुभम से पूछता हूँ, फिर मैं I'll come back to Lokesh. Lokesh, I'm asking this question to you. Again, Yeah. you don't have to answer it right away. तो अभी बताना, बट लेकिन मेरे को इसका आंसर देख लेने दे। एंड आई एम आस्किंग दिस टू यू बिकॉज कि तेरा ये फर्स्ट क्लास है एंड स्टिल यू हैव रेज्ड हैंड कि हाँ भाई तेरे को समझ में आ रहा है, सो दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल, राइट? तो पहले तुम बताओ यार, किसकी बात चल रही थी अभी? शुभम? यस सर। हाँ शुभम, बताओ यार। सर डिपार्टमेंट लेंगे। ओके, सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट ग्रुप डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ये मैं कोने में लिख रहा हूँ यार, सब होपफुली सब लोगों को दिख रहा होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, और ब्रैकेट में सर मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी। कौन सा comma ब्रैकेट? किधर किधर, कौन से लाइन में? कहीं पे कुछ भी बोलेगा भाई तू। कौन सा लाइन, किस लाइन पे मैं ब्रैकेट लगाऊं? First of all, just be calm for a second, okay? Which columns Yes. do I have to talk about? What is the aggregation function I'm going to use? On which Yes. column I'm going to use aggregation function? These are the questions that need to be answered before even you start writing the query, यार। क्वेरी लिखते समय तुम नहीं सोचते, पहले सोच लो कि तुम्हें कौन से कॉलम से चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, वो कॉलम तुम्हें पता होना चाहिए। कौन से टेबल से चाहिए, इज देयर एनी फिल्टरिंग दैट नीड्स टू बी डन, किस टेबल किस कॉलम पे ग्रुप बाय लगने वाले, ये सारे आंसर आ जाएंगे। क्वेरी तो तुम आंख बंद करके लिख दोगे उसमें। तुम्हारे आंसर ही क्लियर नहीं है अभी, जहां तक मुझे लग रहा है। I'll give you another minute here. It's very easy. सोचो थोड़ा। Again, you know the answer. थोड़ा सा बस ध्यान लगा, कुछ यहाँ से हिंट ले सके तो ले, कि मैंने क्या पूछा था, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या उस बंदे ने बताया जो फिर इस मैक्स मिन और एवरेज उसने ऐड किया। सर एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखे हैं, सैलरी टेबल से सैलरी टेबल से सैलरी टेबल नहीं है, टेबल इज एम्प्लॉय एंड आई नीड 3 कॉलम्स। लेट्स जस्ट सी व्हाट अदर्स हैव टू से, ठीक है? तो अभी किसने Yes. बोला था यार, नाम भूल गया मैं यार। लोकेश, Yeah. या लोकेश, टेल मी। Yeah. In select column, it is department, max salary and average salary. मैक्स इन ब्रैकेट सैलरी, Yeah. ओके, And comma average salary. कॉमा एवरेज का फंक्शन क्या है?
AVG. AVG, good. Salary, Salary. okay. And from employee table, Just a second यार, इसको थोड़ा सा हटाने दो. Meeting solution. ठीक है. From employee. table. Uh-huh. And here condition, where condition is department in marketing. अरे बहुत सही बात. तुमने SQL पहले से किया हुआ क्या? No, first class it is. सीखो भाई लोग, कुछ सीखो तुम लोग यार. ठीक है. डिपार्टमेंट इन Marketing, bracket marketing. मार्केटिंग में कुछ स्पेसिफिक चीजें या वैसे ही छोड़ दूंगा. सही है ये? Yeah. अभी भी And- गलत है, अभी भी थोड़ा सा गलत है. तो सर ऊपर मार्केटिंग कोड्स में होना चाहिए. Yeah, quotes, yeah, quotes. Sorry. ठीक है. फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट मार्केटिंग. नेक्स्ट. Group by department. अरे बहुत से हो गया. डिपार्टमेंट, मैक्स सैलरी, एवरेज सैलरी कहाँ से चाहिए मेरे को? कोई कंडीशन है? हाँ भाई कंडीशन है, वो डिपार्टमेंट बस मार्केटिंग का होना चाहिए. ठीक है. और किस कॉलम पे मेरे को ग्रुप बाय करना है? डिपार्टमेंट करना है. बात ही खत्म है यहाँ पे. फर्स्ट क्लास में बंदा एक बार में सही आंसर बता रहा है. ठीक है. बाकी लोग तो 2 क्लास करके बैठे हैं यहाँ पे. तो ठीक है, थोड़ा सा यार क्लास के बाद थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि spend some time on whatever is being taught. Okay, we have certain expectation from you and then you have certain expectation from us. तो थोड़ी सी वो मैचिंग होनी चाहिए if we want to get maximum results from this whole program. Okay, I'm not talking about anyone specific. ठीक है. तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही, reach out to us for any sort of help. ठीक है. there are n number of resources on internet, but again तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक चीजें तुम्हें बताई गई है ग्रुप पे. There was this link shared by Neil from Mode Analytics. आधी जनता ने खोली नहीं होगी, that I can guarantee. ठीक है. उसमें सब कुछ दिया हुआ है बेसिक से. ठीक है. And that is just a external resource, right? I'm going to teach you. We are going to teach you each and everything in detail. But if any external help that can be useful, don't be afraid to exploit it. Okay? Goes without saying. Okay. तो यार ग्रुप बाय का फंडा मेरे को I'm hoping कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. I'm not expecting कि सब कुछ समझ में आया होगा. वो सब कुछ end to end वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते करते अपने को चमकेगा. ठीक है. चमकेगा as in like you'll get to know. Okay, in detail. Okay, again some practice problem, and this is going to be the last question. Let's say we have a table. नेक्स्ट क्लास में यार थोड़ा सा मैं तुम्हें कीज के बारे में बताता हूँ. व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, डेटाबेस में कैसे उसकी इंपॉर्टेंस आती है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू गोइंग टू डील विद जॉइंस. सो एज ऑफ नाउ वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं हुई. जॉइंस तो अभी आएगा, ग्रुप बाय के बाद आएगा, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. लेट्स से वी हैव अ टेबल कॉल्ड यूजर आईडी. यूजर आईडी जैसे अपन फेसबुक की बात कर रहे हैं. ठीक है. फेसबुक में सभी यूजर के पास एक स्पेसिफिक यूजर आईडी असाइन होगा. ठीक है. श्याम का कोई और होगा, आदित्य का कोई और होगा. ठीक है. यूजर आईडी इज देयर. देयर इज आल्सो अ कॉलम कॉल्ड डेट. ठीक है. एंड देयर इज आल्सो लेट्स से कॉल्ड सेशन आईडी. Okay, now let me explain what a session is. If whenever you log in into an app, or maybe you open an app, let's say we're talking about Facebook. So Facebook is going to assign a session to that app open. Suppose you open Facebook 5 times in a day. Okay, तो जब जितनी बार भी तुम Facebook खोलोगे ना, Facebook there is very good chance कि हर जितनी बार तुमने खोला है हर ओपन का there will be a separate session ID, so that Facebook knows कि तुमने कितनी बार खोला है. And this is just one way how Facebook can track information about you कि तुम क्या खोल रहे हो, क्या देख रहे हो. ठीक है. तो मेरे पास यूजर आईडी है, डेट है, सेशन आईडी है. नाउ अ पर्टिकुलर यूजर आईडी, लेट्स से U1. ओके. किसी डेट D1 में 5 बार खोल सकता है फेसबुक. ठीक है. सो सेम बंदे ने U1 सेम डे, अगेन U1 सेम डे, जैसे 3 बार खोला. एक बार क्या होगा, उसका सेशन आईडी S1 होगा, एक बार S2 होगा,
S3 होगा. Now this U1 is repeated. Why? Because I'm talking about the same user. Same बंदे ने same दिन. That's why date is also repeated. D1 D1 D1. उसने 3 बार खोला and for those 3 sessions I'm assigning 3 different session IDs. There's one guy U2 जिसने उस दिन बस एक बार खोला तो उसके पास एक ही सेशन आएगा. ठीक है. लेट्स जस्ट से कि भाई फेसबुक के पास बस 2 ही बंदे हैं. ठीक है. तो पहले दिन 2 बंदों ने खोला, ये दोनों के दोनों ने खोला और पहले वाले ने 3 बार, दूसरे वाले ने 1 बार. फिर दूसरे दिन D2 ने 1 बार खोला, U2 ने भी 1 बार ही खोला. ठीक है. And again, how session ID is going to be defined? Is it supposed to be unique for the whole table or supposed to be unique for a given day? That is again a different question. Okay. So for the timing, let's just say कि ये सारी चीजें मेरे पास है. कितने एंट्रीज हो गए यार? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब मुझे चाहिए कि again very basic question and it is supposed to be solved by each and every one of you. Okay. And probably I won't be giving you the answer in this class. ठीक है. तुम सोचो, सोच के डिस्कशन ग्रुप में सब लोग अपना आंसर एक पेपर पे या फिर कहीं नोट पैड पे लिख के और वो कॉपी पेस्ट करो ग्रुप में. आई जस्ट वांट टू सी ईच एंड एवरीवन्स आंसर. और कॉपी देख के किसी और का आंसर करना मत यार. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके. तुम गलत ही करो लेकिन खुद का आंसर करो. ठीक है. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. ठीक है. तो पहले तो यार ये तुम्हारा टेबल हो गया. फॉर एवरी डे what is the total let's say I just have one more column as well. We could just make it interesting. Session ID as well as session duration. Duration again is very important. या तुमने जब फेसबुक खोला वो तो कितने देर के लिए तुमने चलाया. तो सेशन 1 में मैं बोल सकता हूँ मे बी तुमने 2 मिनट के लिए चलाया. सेशन 2 में तुमने 5 मिनट के लिए चलाया. सेशन 3 में कोई मस्त वीडियो दिख गया, तुमने 10 मिनट के लिए चलाया उसी बंदे ने. यूजर 2 जो था एक बार ही खोला. ठीक है. उसको बहुत ही कुछ मजा नहीं आया. 1 मिनट के लिए कुछ उसको ढंग का दिखा नहीं. फिर उसने वापस उस दिन फेसबुक खोला ही. ठीक है. तो बस 1 मिनट के लिए. सेम यूजर सेकेंड डे U1 सपोज करिए 3 मिनट के लिए चलाया और U2 भी मान ले 2 मिनट के लिए चलाया. ठीक है. ड्यूरेशन इज इन मिनट्स. आई वांट फॉर ईच डे व्हाट इज द टोटल duration. Just change the color. Total duration, total session duration from all users. ठीक है. Average session duration. ठीक है. Again from all users. ठीक है. टोटल पूछ लिया, सेशन ड्यूरेशन एंड एवरेज सेशन ड्यूरेशन. और मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि चल ठीक है हर दिन टोटल यूजर्स कितने थे. ठीक है. सो व्हाट आई वांट, व्हाट इज माय आउटपुट टेबल, व्हाट इज आई रिक्वायर फ्रॉम यू. ओके. आई वांट द डेट फर्स्ट ऑफ ऑल. हर दिन की बात हो रही है. यू कैन अज्यूम कि यार ये इन रियल लाइफ सिनेरियो डेट इज गोइंग टू बी D1 D2 D3. मान लो 1 महीने की डेटा है तुम्हारे पास तो D1 से लेके D30 तक होगा. ठीक है. और एक यूजर कितनी बार सेशन क्रिएट किया उतने नंबर ऑफ टाइम्स उस दिन का उस यूजर का रो रिपीट होगा. ठीक है. द ओनली थिंग इज गोइंग टू चेंज इज प्रोबब्ली द ड्यूरेशन एंड द सेशन आईडी ऑब्वियसली इज गोइंग टू चेंज. ओके. द आउटपुट टेबल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझे बताओगे कि भाई डे, सेकंड वन इज एवरेज ड्यूरेशन. ठीक है. थर्ड वन इज टोटल ड्यूरेशन TOTDUR एंड यूजर काउंट USRCNT. डे, एवरेज ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन, यूजर काउंट. So in this example I just told you that there are just 2 users, right? You can assume there are millions of users. कुछ भी हो सकता है यार. एक दिन में बहुत सारे लोग बहुत बार फेसबुक चलाते हैं. ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए
फ्रॉम ऑल यूजर्स टोटल यूजर चाहिए। अब टोटल यूजर का मतलब तुम यार अगर डे के हिसाब से तुम यूजर काउंट करो तो थिंक अबाउट इट, इफ आई एम गोइंग टू डू अ ग्रुप बाय, अगेन आई विल गिव यू हिंट, अगर मैं डे पे ग्रुप बाय करूँ तो D1 में कितने यूजर्स है मेरे पास? 2 यूजर है, U1 एंड U2। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज काउंट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट यार, काउंट में तो सब कुछ काउंट कर देगा ना वो, U1 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 U2, तो 4 बताएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? 2। That means I have to use distinct count. I don't want just the count. So instead of just writing count, I'm going to write, again, this is just the hint, count distinct, different count distinct what? User ID. And this is not same as writing count user ID. हर दिन का D1 का मैं काउंट यूजर आईडी करूं तो मेरे को 4 मिलेगा, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, माय करेक्ट आंसर इज 2। okay, for D2 in this table again 2, you can assume there is one more guy, just a bit off, cut this one off, you can assume there is one more guy, U3 same D2 machine ID S1, ये 2 U3 ने फिर से लॉग इन किया सेम डे D2 S2, इस बार 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो you can assume anything, any kind of possibility is here in terms of the data. Okay, so this is not same as just counting the user ID, you have to do distinct user count. Okay, this is the answer that I want you: day, average duration, total duration, and user count, and this again has to be distinct. Okay, so instead of count you're going to use the distinct user ID. Now spend some time on it, okay, and post your answers in the discussion tab, discussion group. Okay, and that would be all for today's class यार। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट? माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई डाउट है किसी को? तो कूल यार, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रमोद, ये पहले से ही हाथ खड़े थे तुम्हारे कि अभी किए? आई एम नॉट श्योर यार। पहले ही से था। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन थोड़ा दिखे दो। ओके, क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अभी मैं ग्रुप पे तुम्हें भेजता हूँ ये, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत कि क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या बकवास कर रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टेबल का नाम असाइन कर दो। टेबल का नाम ले ले भाई, सेशंस। ओके, सेशंस टेबल का नाम है, सो दिस इज योर टेबल नेम। ये तुम्हारे पास 4 कॉलम है। आउटपुट मुझे क्या चाहिए ये भी तुमने बता दिया, क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया, आउटपुट भी बता दिया, जहाँ पे तुम फंसने वाले थे वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब तुम्हें बस सिंटैक्स लिख के बताना है मेरे को, एंड आई एम होपिंग कि सभी लोग सही आंसर देंगे, ठीक है। चलो यार, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज क्लास यहीं पे बंद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वर्कबेंच तुम्हारा इंस्टॉल करवाते हैं। आई विल बी सेंडिंग आउट द लिंक हाउ टू इंस्टॉल वर्कबेंच एंड सेट इट अप ऑन योर ओन डेस्कटॉप, लाइक इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes, ठीक है। वो करके नेक्स्ट क्लास तक तुम रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्लास जो होने वाले ऑब्वियसली वो शायद से अभी, अगर कल देखते हैं, मतलब जो भी शेड्यूल होगा, आई विल बी सेंडिंग आउट दैट इन द ग्रुप, where is going to be some analytics basic class or maybe some continuation of SQL, that is yet to be decided। तो हम देखते हैं कि अभी तुम्हारे लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा अभी, बट फॉर द टाइमिंग आई सजेस्ट ये क्वेश्चन करो, करके मेरे को सॉल्यूशन दो। आई विल बी सेंडिंग आउट द लिंक टू इंस्टॉल workbench and your workbench server, which is going to use for your like assignments and everything and evaluations, ठीक है। चलो यार, if there is no question, I'm just going to stop sharing my screen and we'll call it quits.